सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। सुबीर को दो, सुबीर मजुमदार। हाँ महाराज जी, हम आ गए। मजुमदार will summary, do summary. Good. प्रणाम महाराज। हाँ चलो, गुड मॉर्निंग। हाँ शुरू करो। ओके 24-25 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ओके स्पिरिचुअल टीचिंग पार्ट 2। Man has forgotten his divine nature. The task in spiritual life is to discover man's true nature. In this temple of the body, the devotee and deity are there. We should try to bring about their union. We should think of ourselves as Atman, a part of Paramatman, the infinite. The pleasant and the unpleasant, all pairs. महाराज थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, डिस्टर्बेंस हो रहा था। The pleasant and the unpleasant, all pairs of opposites, always exist side by side in the unreal phenomenon of Srishti, Sthiti and Pralay. He is the reality behind and beyond all this in unreal phenomenon. We have to connect all our desires with the divine. If you love somebody and feel greatly attached to him or her, love the divine in that person. After your japa and meditation, try to see the Supreme Spirit in oneself, in Guru Maharaj Ji, in Mother, and in all persons who come One hour I am busy. with us. When someone annoys us, try to see the good point in that person. As the spiritual consciousness awakens, all desires and passions as well as their objects appears to be unreal. Hold on to your Ishta Devata and Ishta Mantra. All obstacles will gradually disappear. Through meditation, we develop intense introspection. There are different stages in spiritual evolution. One should not be like the Charvakas, who did not believe in the Atman and thought that there is no life after death. Just eat and be merry. Let us not to be like the Charvakas, inside and wear the dress of religiousness outside. As we begin to believe in God and Atman, we meditate on a holy personality, but later on, we must think we are a part of the Supreme Spirit and we are part of that infinite light. In the beginning, we may think God is separate from ourselves. Later, we find we are His parts, and finally, we feel that in our true nature, we are one with God. During japa and meditation, we think of ourselves as a small sphere of light. Gradually, we merge ourselves, our body, our mind, our ego, and even the personality of our Guru into the infinite light. Just as a drop of the ocean, the wave merges with the ocean.
We have to get rooted in Thakur and Ma and not in a place or person and adjust within, then all the problems will go away. One cannot do meditation all the time. One has to work too. Connect the work, the thought of work with God. Do all the work as service to the Lord. Yad yad karma karoni tat tat akhilam samvo tab aradhanam. We have to create solitude in our mind. Work and worship should go together. At first, there is difference in work and worship. Later, work too becomes worship. If one is a nurse or a doctor, then we must see God in patients and serve them. Every minute we have to adjust. There is no question of liking or hating work. This helps in the purification of the mind. All this is only a stage. Feel the divine presence within too. About theory of karma. Each in the maker of his own destiny. Karma produces not only what we see, but also seen results. The law of karma is the law of self-effort. If our present life is the result of our own past, it follows that we can change our future by our present efforts. Never get attached to a place or personality. Never seek your own comfort, even if the work that comes to us is unpleasant. Do it as a duty. About divine grace. Swami Brahmananda used to say that grace comes in the form of self-effort and yearning. Grace does not mean the removal of miseries only, but it is also the strength the devotee gets to face all the difficulties. It enables the devotee to feel the divine presence in the middle of the greatest suffering. We must have grace of our mind through self-control and self-effort to attain the supreme goal of life. Lastly, we must understand what is surrender. Surrender only happens after maximum self-effort, like in that story in Kathamrita of the bird sitting on the mast of the ship. Surrender means offering one's soul, mind and body to the Supreme Spirit, praying to be an instrument in His hand. Surrender can only happen if the little ego is sacrificed. The ego is not killed, it is transformed. Finally, God's will becomes our will. Thank you, Maharaj. Excellent. You've done very nicely. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Just a minute. Now, so shall we begin with question answers? Yes. Sanjay? दिलीप भाई Yes, sir. शुरू कीजिए. जी प्रणाम महाराज. संजय भाई, दिलीप भाई पहले. जी. Number one, when all forms are temporary and all forms are temporary
and all will go away. Meditate on that which remains thereon. What that which remains, on which should we meditate? जब आप सो जाते हैं, स्वप्न भी दिखता नहीं है, सब कुछ चला जाता है, तब भी सोते समय उसके बाद जब उठते हैं तो कहते हैं कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, मैं कुछ नहीं जानता था। उस समय कुछ था तो कुछ था ना, आप थे जी। वहां पे, जी। सोते हुए भी आप थे। वो कौन है? वो चैतन्य आत्मा है। जी। तो जब फॉर्म्स चले जाते हैं तो उसके बाद में चैतन्य आत्मा रहती है, तो वो उसको कहते हैं, उसके ऊपर ध्यान करिए। बराबर। जी जी। अगर इतना नहीं हो तो प्रकाश के ऊपर ध्यान कीजिए। ठीक है? राइट। जी महाराज। हाँ, तो ये एक बार बार इस आर्टिकल में रिपीटेडली इस बात को कहा गया है। शुरू में भले ही हम रूप पर ध्यान करें, बट अंततो गत्वा हमको रूप के परे जो सत्ता है उस पर ध्यान करना सीखना पड़ेगा। ओके? जी ऑल महाराज। परवेडिंग कॉन्शियसनेस, यतीश्वरानंद जी जिनका ये आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट करते थे। यस। चैतन्य सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, उसका ध्यान करो। नहीं तो क्या होगा कि हम केवल रूप पर ही चिपके रह जाएंगे, रूप के आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है? राइट महाराज जी। जी। अच्छा, Next, when this physical body disappears after death, then how to experience Satchidanand? बिफोर डेथ यू हैव टू एक्सपीरियंस। तो मृत्यु के बाद तो डेथ, शरीर चला जाएगा, लेकिन हाँ। उसके पहले तो अनुभव करना है। आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल में ऐसी कुछ बात है क्या? एक मिनट महाराज। God is God only when He is the Lord of creation, preservation and destruction, and above all, the God who is also none of these. He is the reality behind and beyond all these unreal phenomena. They come and they go, but Satchidanand ever is, and as souls we are one with it. The greatest truth is you are the Atman. तो जागृत, जब हम वो सृष्टि होती है, उसके हाँ। बाद में स्थिति होती है, प्रलय होता है, इन तीनों के पीछे सच्चिदानंद विद्यमान है। हाँ। तो मृत्यु के बाद की बात कहाँ पे आती है? जी। अभी हम जब जागृत हैं, अभी हम सृष्टि में हैं, तब हमारे पीछे जो है, इस सृष्टि के पीछे भी वो सच्चिदानंद विद्यमान है, उसका ध्यान करिए। राइट। जी महाराज। यहाँ जो लिखा था, इससे मेरा सवाल आया है, ही इज द रियलिटी बिहाइंड एंड बियॉन्ड ऑल दिस अनरियल फिनोमिनन, दे कम एंड दे गो, बट सच्चिदानंद एवर रिमेन्स। हाँ, तो जो सच्चिदानंद रहता है उसी का ध्यान करना है ना। जी। जी महाराज जी। बाकी नंबर चीजें जाती 3, हैं, उससे अपने को क्या लेना देना, उसके छोड़ के हमको सच्चिदानंद का ध्यान करना है। ओके जी। 3, how to see the supreme spirit in us after jap and meditation is over. वो तो ऐसा है कि जप और मेडिटेशन कर लिया, उस समय तो हम सुप्रीम स्पिरिट का ध्यान करते हैं, समझे ना। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो सुप्रीम स्पिरिट या परमात्मा का चिंतन करते हैं। सुप्रीम स्पिरिट का मतलब है, स्पिरिट यानी आत्मा, सुप्रीम यानी परमात्मा। तो सुप्रीम स्पिरिट का मतलब है परमात्मा। तो Yes. जब ध्यान जब करते हैं, तब तो हम परमात्मा का चिंतन करते ही हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ध्यान जब हो जावे, तब भी परमात्मा का को देखते रहो, उसको देखने का प्रयत्न करो। ठीक है? ओके जी जी। Even after jap and meditation, we should remain in Paramatma. हाँ, उसके बाद में भी हमको भगवान का ध्यान बनाए रखना चाहिए। जी। Yes. Right, sir. Next, Maharaj. How religious materialists are dangerous. वो तो कहा ना है कि धार्मिक बनते हैं, लेकिन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। उससे जितना मुझे पैसा मिल जाए उतना ही अच्छा है।
यानी अधिकांश हम लोग जो हैं वो धार्मिक बोलने मात्र के हैं, लेकिन हम इंटरेस्ट लेते हैं भगवान से प्रार्थना की, है भगवान मेरा बिजनेस ठीक कर दो, हे भगवान मेरा मकान जो है वो ठीक कर दो, ये टैक्स पीछे लगे हुए हैं टैक्स वाले, इनको जरा ठंडा कर दो। ये भगवान से प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? हमारी भौतिक समृद्धि के लिए कर रहे हैं। Yes. तो ये मटेरियलिज्म ही हुआ, तो और क्या हुआ? जी तो भगवान का जब उपयोग आप अपने सांसारिक चीजों के लिए करोगे, मटेरियलिस्ट चीजों के लिए करोगे, तब Yes. आप हो गए हैं रिलीजियस मटेरियलिस्ट। Oh yes, जी जी, हाँ, right. Next, Maharaj ji. When in every man there is a divine nature which we have forgotten, but at all times why Guru does not see in disciples. It is written only when the Guru sees God in the disciples, then he can guide, help and do real good to them. तो क्या हुआ? क्या प्रश्न किया आप? मेरा प्रश्न ये है कि it is written here that when every man there is a divine nature. In every man there is a divine nature. But we have forgotten our divine nature. But at all time, why Guru does not see in disciples? क्योंकि जब हमारे में divine nature है by birth, so why Guru is not seeing in us? And it is written that only, it is written only when the Guru sees God in the disciples, then he can guide, help and do real good to them. तो गुरु को 24 ठीक है जी, आप ये कैसे जानते हैं कि गुरु डिसाइपल में गुरु भगवान नहीं देखता? ये कैसे जानते हैं आप? नहीं ये महाराज, आपको कैसे पता चला? नहीं ये यहाँ लिखा है कि when the Guru sees God in the disciples, then he can. मैंने he is not seeing all the time. नहीं, तो उन्होंने बोल दिया। मतलब ये है कि जब गुरु डिसाइपल के अंदर भगवान देखेगा तब उसको गाइड करेगा, यही बोल रहे हैं ना? हाँ ये बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि by birth human we are a divine nature. It is written. हाँ। तो जब हम डिवाइन नेचर है तो गुरु ने पहले से ही हमको, जैसे हम मिले उनने हमको देख लेना चाहिए ना। तो आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि वो नहीं देखता है? वो तो देखता है। आपको कैसे मालूम कि नहीं देखता है? अरे अभी एक प्रश्न आएगा उसका ऊपर उल्टा, आपने जो किया उसका उल्टा। जब गुरु शिष्य के अंदर भगवान देखेगा तो उपदेश कैसे देगा? वो तो भगवान देख रहा है, उसको उपदेश कैसे देगा? ये प्रश्न आएगा। और आप उल्टा प्रश्न कर रहे हो। क्यों यहाँ लिखा है ओनली व्हेन द गुरु सीज गॉड इन द डिसाइपल? मतलब ये है कि वो हमेशा देखता है। ओके राइट जी महाराज जी जी, प्रणाम। एक और आखिरी सवाल है। देखो इसके बाद में ये भी है, श्री रामकृष्ण का क्या है, वो लाटू महाराज जो है वो ध्यान कर रहे थे, उनको पसीना आ रहा था बहुत, तो लाटू ठाकुर जाके उनको पंखा झलने लग गए। तो लाटू महाराज जागृत हो करे, आप तो मेरे गुरु ये क्या कर रहे हो? देखिए मैं तेरे में भगवान है उसको पंखा झल रहा हूँ। और नरेंद्र के लिए इतना रोते थे, तो नरेंद्र ने कहा कि आप मेरा इतना चिंतन करते हैं तो आप अगले जन्म में नरेंद्र हो जाएंगे। तो माँ के पास गए, माँ जगदम्बा ने कहा कि तू उसमें भगवान देखता है। तो श्री रामकृष्ण जितने लोग थे सब में भगवान देखते थे और उसका उपदेश देते थे। तो दोनों चीजें एक साथ चल सकती है, भगवान देखना और उपदेश देखना। ये पॉइंट और भी डिस्कस होगा। जी 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 महाराज। अब एक आखिरी सवाल है। इट इज वेरी रेयर टू हैव अ डिजायर फॉर साल्वेशन एंड द कंपनी ऑफ होली मैन इन द ह्यूमन बर्थ। फॉर दिस व्हाट वन शुड डू? इट इज नॉट इन आवर हैंड, दैट is what I feel. It is God's grace. Am I correct? मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। It is very rare to have आखिरी में महाराज एक मिनट। It is very rare to have a desire for salvation and the company of holy man in the human birth. But for this, what one should do? ये हमारे हाथ में तो है नहीं। It is not in our hand. That अरे तो प्रार्थना करो ना ठाकुर के, भगवान की प्रार्थना करो। अरे बाकी जो काम है ना,
तुम्हारे ऑडिट के काम है और उसके बाद में जो दूसरे सब चीजें हैं वो तो हमारे हाथ में है, सारा हम करते हैं। हाँ, लेकिन जहां होता है कि सत्संग चाहिए, उसमें कहते हैं इट इज नॉट इन माय हैंड, वो भी खोजो ना। अब ये गलत बात है। हाँ, जी, हम बाकी संसार के काम जो है वो तो हमारे हाथ में है, वो उसके लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते। जहां पे सत्संग की बात हुई और तो बात कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं, कहाँ मिलेगा। ये क्या जी। बात है? ये बात नहीं है। उसको प्रयत्न करिए, ढूंढिए, सत्संग मिल जाएगा, जी। तो महाराज प्रार्थना कीजिए, मिल जाएगा। नहीं, ये एक लाइन ये लिखी है, इट इज वेरी रेयर टू हैव ए डिजायर फॉर साल्वेशन एंड द कंपनी ऑफ अ होली मैन इन द ह्यूमन बर्थ। हाँ ये ठीक है, इसलिए आर्टिकल में बहुत कठिन है माम, ठीक बात है। इसलिए प्रार्थना करो, जी, प्रार्थना करो, यदि मिल जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। जी, जी, जी महाराज जी, बस। चलो, प्रणाम। के कुंडू। यस महाराज। यस, आइए, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ, आइए, गुड मॉर्निंग। हाँ, Maharaj, I said, so long as we are embodied soul and living in the phenomenal world, is it possible to completely go beyond the dualities? Even if we are not afraid of the unpleasant. Here it said that we are afraid of, we are generally are afraid of the unpleasant. But even if we are not afraid of the unpleasant, definitely will try to address the issues causing them. Should we accept them meekly and not try to change them? why do you see? Yes, definitely. Why should you not? You know, we must try to change. This is spiritual struggle. Okay. Spiritual So- struggle is whatever difficulties are there, you have to get over them. Suppose you are in a worldly place. हम लोग तो छोड़ के आ गए ना इसीलिए कि भाई ये हमारे तो संसार में तो प्रॉब्लम होती है, हम छोड़ के आ गए। बिकॉज देर आर दीज आर ऑब्स्टेकल्स आर देयर इन माइंड, कुछ समझा नहीं, हम छोड़ के आ गए। तो यू मस्ट स्ट्रगल, So- व्हाई शुड यू नॉट स्ट्रगल? So, स्पिरिचुअल I have- स्ट्रगल must continue and strongly must continue. Okay, Maharaj. Why should you adjust to it? Well, there must be absolutely no compromise. हम लोग क्या कहते हैं, संसार में ये लगा है, वो लगा है, ये लगा, अरे वो तो हमेशा लगा रहेगा। ड्युअलिटी में हमेशा संसार रहेगा। उस ड्युअलिटी में संघर्ष करना है, स्ट्रांगली संघर्ष करना है। And then how do we go beyond the duality? अपने आप को चेंज करना है, आप बाहर के सिचुएशन को चेंज करना है। नहीं छोड़ो, हम नहीं रहेंगे, हम तो छोड़ के निकल आए। और अब यहाँ पे कोई कहे कि आप इस प्रकार करो, इस प्रकार का, हम नहीं करेंगे, हैं? Okay. Maharaj, Yeah. what I was telling is that means I am in the dualist world. I am within duality. I am getting something pleasant, and I am trying to address them in my own way. Now, how do I go beyond the duality when I am struggling in it? No, don't worry about going beyond duality. Okay, Maharaj. The whole spiritual struggle is in duality. Okay, Maharaj. Okay, हाँ, Maharaj. अविद्या भी है और विद्या भी है। These things we have discussed. Yes, Maharaj. अविद्या जो है ये भी ड्युअलिटी में है, और वो कांटा लगा हुआ है, उसको दूसरे कांटे से निकालना है। तो ये सब ड्युअलिटी में ही होती है, सारी स्ट्रगल ड्युअलिटी में होती है। इंटेंसिटी, व्याकुलता, ये सब ड्युअलिटी में है। हाउ टू गो Yes. बियॉन्ड ड्युअलिटी, डोंट वरी अबाउट इट एट प्रेजेंट। Okay, Maharaj. इंटेंसली लगे रहो। हाँ, Yes, Maharaj. Second question, Maharaj. Is the theory of karma tenable if one does not believe in rebirth? Because most of the time you are told कि ये पूर्व जन्म की काम है इसलिए हो रहा है, बट अगर नहीं, कोई आप- जन्मांतर में विश्वास नहीं करते हैं, वो कर्म में कैसे विश्वास रखेगा? अच्छा तुम किसी को गाली दे दो तो उसका कर्म का फल नहीं होगा क्या? इस जन्म में ही हो जाएगा कर्म का हाँ, वो फल। होगा, इस जन्म में होगा। और इस जन्म में हो जाएगा। अब तुम Yes, Maharaj. मिर्चा खाओ तो पेट में जलन होगी, Yes, पेट भर Maharaj. के ज्यादा खाओ, भंडारा खाओ तो डायरिया हो जाएगा।
तो हाँ। कर्म तो है ही, जो कर्म करोगे उसका फल होगा। इस जन्म में बहुत सारे फल मिल जाते हैं। Yes, Maharaj. और But सच then पूछा जाए, when- कर्म में मानना ही नहीं। हाँ, डोंट वरी अबाउट दैट। अरे अगला जन्म होता है कि नहीं होता है कोई मालूम नहीं। When you come to the practical, you have to do good, and that is that good influence will go good, वो आपका कैरेक्टर बनेगा। और कैरेक्टर को अगले जन्म में नहीं बनेगा, इस जन्म में बनेगा। ध्यान रेगुलर करोगे तो आपकी ध्यान की हैबिट इस जन्म में बनेगी, अगले जन्म नहीं। बिल्डिंग तो उसको कर्म फल बाहर क्यों लाते? Okay. नहीं Maharaj, generally like people keep telling that like इस जन्म में तो मैंने कुछ खराब नहीं किया, ये हो रहा है, पूर्व जन्म की फल होगा। तो मैं उस हिसाब से बोल रहे थे कि अगर पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते हो जन्मांतर में, तो कर्म का थियोरी को कैसे, like how you understand it? नहीं, कर्म पूर्व जन्म में कई लोग विश्वास नहीं करते हैं। Okay. कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इस जन्म में अच्छा काम करते हैं। मेरा ये कहना है कि कर्म को लाते ही क्यों हो? अच्छा काम करो बस, उससे अच्छा होगा। बुरा काम करोगे तो जेल में जाओगे। अच्छा काम मिलेगा तो आपको प्राइज दे देंगे, एक मेडल दे देंगे। इस जन्म में मिल गया आपको तो व्हाई डू यू ब्रिंग पूर्व कर्म? ठीक है मान, ओके, ठीक है मान। इसको सोशियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया। सोशियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली इट कैन बी डन। सुबीर मजूमदार। प्रणाम महाराज जी। बोलो। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, the article talks of pleasant and unpleasant aspects of reality. To one be God fearing if there is an unpleasant aspect of reality? After all, the scriptures ask us only to love God. क्या हुआ? मतलब रियलिटी का एक अनप्लेजेंट एस्पेक्ट भी रहता है, इसलिए इंसान को क्या गॉड फियरिंग होना चाहिए इस अनप्लेजेंट एस्पेक्ट को देखते हुए? क्योंकि लोग कहते हैं ना भगवान से डरो, तो लेकिन स्क्रिप्चर्स कहता है कि भगवान तो आपको प्यार करते हैं, तो डरने की क्या बात है? किसने बोला? ये गॉड फियरिंग का जो ये जितने संत हुए हैं वो सबके सब उन्होंने थ्योरी को, ये प्लेजेंट अनप्लेजेंट को माना ही नहीं। जी। वो तो अपने भगवान में मस्त रहते थे और अनप्लेजेंट होता रहता था, उसकी चिंता नहीं करते थे। संत तुकाराम भगवान के से प्रेम करते थे, डूबे हुए हैं प्रेम में, उनका संसार चौपट हो गया, उन्होंने कोई चिंता नहीं की। श्री राम कृष्ण के साथ तो हाजरा लगे ही हुए थे, उससे क्या होता है? व्हाई डू यू ब्रिंग प्लेजेंट? यानी प्लेजेंट, वही तो यहाँ पे ये बोला गया है कि प्लेजेंट और अनप्लेजेंट हमेशा दुनिया में रहेंगे। हमारे शरीर में प्लेजेंट अनप्लेजेंट है, समाज में अनप्लेजेंट है, अप्लेजेंट है, वेदर में कभी गर्मी है, यहाँ तो इतनी भयानक गर्मी है कि बस वो तो प्लेजेंट अनप्लेजेंट तो लगा ही रहेगा। लेकिन इससे भगवान से प्रेम करने में क्या डिफरेंस? हाँ, मतलब डोंट बी अफ्रेड ऑफ भगवान। जी जी बिल्कुल, भगवान से अफ्रेड होने की बात नहीं है, प्रेम करो भगवान से, एंड यू डोंट वरी अबाउट द प्लेजेंट अनप्लेजेंट। जी जी। जब आगे पति पत्नी या एक वाइफ एक स्त्री पुरुष प्रेम करते हैं तो वो अनप्लेजेंट पर प्लेजेंट नहीं सोचते। प्लेजेंट भी आता है उनके जीवन में, अनप्लेजेंट भी आता है, लेकिन प्रेम बना रहता। यहाँ पे भक्त जो है वो अनप्लेजेंट और अनप्लेजेंट दोनों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, दोनों उनके साथ ठीक है, वो परमात्मा को प्रेम करते रहते हैं। इसके बाद तुम्हारा क्या क्वेश्चन है ये बस समझ गया महाराज, यही सवाल था। दैट इज वी हैव टू बी इंडिफरेंट टू प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट एंड जस्ट लव गॉड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, व्हेन वी थिंक ऑफ आवरसेल्फ एज आत्मन, then it gives us immense
strength and fearlessness immediately. जब भी हम सोचते हैं अपने आप को आत्मन तो ये फीलिंग आता है, but this experience is short lived, ज्यादा देर रहता नहीं है. How to extend it? ऐसा है कि इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए. हम तो मॉर्निंग में चिदानंद रूप शिवोहम हमेशा करते रहते हैं. जी जी. प्रत्येक दिन चैंट करो चिदानंद रूप शिवोहम. निर्वाण षटक है ना, जी जी. उसको करो. या अष्टावक्र गीता तुम पढ़ डालो. अष्टावक्र गीता में प्योर आत्मा का स्वरूप है, बस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ही बात हो रही है और कुछ नहीं है. तो अद्वैतिक ऐसे टेक्स्ट पढ़ो और उनको चैंट करो जिसमें ये बात कही गई है कि हम सच्चिदानंद रूप शिवो. इसको रेगुलरली करने से हैबिट बन जाए. अर्ली मॉर्निंग जो सब ध्यान जब करते हैं तो इसके साथ में ये भी करो. मतलब दैट इज द ओनली वे. अदरवाइज तो संसार में तो ड्युअलिटी में पड़े हुए हैं, हम फिजिकल हो जाते हैं बस. ओके. स्ट्रांगली इंप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा डेली, ऑन डेली बेसिस, राइट? हाँ, तो स्ट्रांग तो प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. Last question, Maharaj ji. We look for solitude when we get away from our daily routine, as advised by Sri Sri Thakur in Kathamrit. But how do we obtain solitude in our mind? So, इसकी बात करते हैं आर्टिकल. What is solitude? First is you go on doing this solitude, जो physical solitude एकांत में रहते हो, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस किए जाओ. इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाओ. आधे घंटे के लिए एकांत में रहे, भगवान का नाम जप किया, फिर आधे घंटे शाम को रहे, बीच में 15 मिनट रहे. ग्रेजुअली द फिजिकल सॉलिट्यूड जो है उसको उसका टाइम बढ़ाते चले जाओ. एंड ग्रेजुअली उससे क्या होगा कि जैसे ही वही टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बीइंग जो है, तुम्हारा इनर पर्सनालिटी वो पीसफुल हो जाएगी. और दूसरी बात यह है प्रैक्टिस ऑफ अवेयरनेस. कुछ समय बैठकर या चलते फिरते भी आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर सकते. ठीक है महाराज. प्रणाम महाराज जी. दैट्स ऑल. ओके, ठीक है महाराज. अच्छा, शिवानी. प्रणाम महाराज. हाँ भाई, नमस्ते. बोलो, क्वेश्चन करो. नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है. माइक से पास में रहो, सुनाई नहीं दे रहा है. शिवानी मैम, आप मेरा क्वेश्चन है कि when we are aware that our aim is to meditate on God and to get His divine. महाराज सुनाई दे रहे हैं? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है महाराज? पास में लो, सुनाई दिया था. हाँ ठीक है, बोलो. When we are aware that our aim is to meditate on God and to get His divine grace, then how we can continue with our other duties? If you do other duties, will you not get divine grace? श्री कृष्ण ने अर्जुन तो सब छोड़ के जा रहा था. श्री कृष्ण ने उनको भयानक ड्यूटी में लगवाया, इतने लोगों को मरवाया, यहाँ तक कि भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा उसको. ये कितनी अप्रिय ड्यूटीज थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि ये भी तुम्हारे काम की है. ड्यूटीज जो है, यतीश्वरन जी का आर्टिकल तुम फिर से पढ़ना. उन्होंने कभी नहीं कहा कि ड्यूटी को छोड़ो. उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत काम करता था, और जब भी मैं काम करता था तो मैं पूरे उसी मन से करता था कि जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ. Don't make a difference between meditation and duty. Do with 100% attention duty. But we should be able to withdraw after that. And when you sit for meditation, meditation में भी पूरे मन से करना चाहिए. तो ऐसा मत कहो कि तुम्हारी ड्यूटी मेडिटेशन है. दूसरी बात यह है कि अगर आप ड्यूटी को छोड़ दोगे तो यह मत समझना कि तुम मेडिटेशन कर सकोगे. तुम्हारा मन और फंसाएगा तुमको. तुमको पहले जो है 2 घंटा मेडिटेशन के लिए मिलता था, ड्यूटी छोड़ दी, अब सारा दिन मेडिटेशन है, तुम्हें 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकोगे. हमारा रेस्टलेस माइंड वो नहीं कर पाता है. तो इसलिए try to make the best use of time available in meditation. Remember,
ट्राइब, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बीच बीच में टाइम मिल जाएगा तुमको, आधा घंटा यहाँ मिल गया, आधा घंटा वहां मिल गया, बहुत सारा टाइम हमको मिलता है, फालतू बर्बाद करते हैं। उस टाइम को मेडिटेशन में यूज करो। जब हॉलीडे होवे, छुट्टी होवे, उस दिन ज्यादा मेडिटेशन करो। उस दिन तो हम बहुत सारे काम ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एकांत में रहने का प्रयत्न करो और मेंटली कर्म करोगे, लेकिन मेंटली डिटैच होने का प्रयत्न करो। अन्यथा अगर ड्यूटी छोड़ दोगे तो उल्टी समस्या हो जाए। ठीक है? सतीश वेग, सतीश वेग। प्रणाम महाराज। हाँ भाई बोलो। महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे तो दिस वर्ल्ड इज अनरियल, बट वी आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. We consider ourselves mind and body combinations. So we have at least needs of mind and body, if not desires or passions. How can we have Atma Buddhi while living in this world? देखो अभी क्या बुद्धि है तुम्हारी? मैं मनुष्य हूँ, मैं काम करने वाला हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, ये बुद्धियां हैं हमारी, है ना? तो ये बुद्धियां तो है ही। अब विचार के द्वारा हमको आत्मा की बुद्धि रखना है। मैं तो बचपन से बना हुआ है ना। जब मैं जो बचपन से बना हुआ है वो नहीं बदला, उसके बाद में बीच में आ गई बुद्धि कि मैं एक जॉब करने वाला आदमी हूँ और मैं पति हूँ या मैं पिता हूँ, ये बाद में बुद्धि आई। जब बचपन में थे तो मैं था ही, और अभी भी है। मैं 80 बरस का बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं बना हुआ है। ये मैं क्या है? ये मैं बुद्धि है, यही आत्म बुद्धि है। इस आत्म बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। हमेशा ये सोचना है कि ये जो मैं है ये कभी बदलने वाला नहीं है, यह सदा बने रहेगा और यही मैं आत्मा हूँ। इस बार बार इसको बनाए रखने का प्रयत्न करो। दिस इज द वे, इसमें आत्म बुद्धि आपकी डेवलप होगी। ठीक है? ये अनुभव करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर मन बुद्धि। हाँ, पहले देखो ऐसा नहीं, विचार के द्वारा पहले स्थिर कर लो इस चीज को। विचार तो कर लिया, विचार के द्वारा स्थिर नहीं होती और ऊपर से सब चीजें सांसारिक चीजें ऊपर से थोप दी जाती हैं, तो हमारी आइडेंटिटी जो है संसार की आइडेंटिटी हो जाती है। इसलिए पहले विचार करके देख लो कि मैं आत्मा हूँ क्या, कि हाँ मैं तो हूँ। अरे इन सब के पीछे मेरी बेसिक आइडेंटिटी तो आई की है, ये मैं आत्मा हूँ। बस उसको ज्यादा पकड़े रहो एक बार विचार के द्वारा, और उसके बाद प्रत्येक दिन करो। जैसा मैंने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे निर्वाण षट का प्रत्येक दिन पाठ करो। ओके? समझ गया महाराज। अपनी उस मैं को पकड़ने की कोशिश करनी, उस मैं को पकड़ने की कोशिश करनी है, ना कि ये जो आर्टिफिशियल मैं को पकड़ने की कोशिश करनी है, ये मैं ही आत्मा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, उसमें आर्टिकल में था, you merge the personality into Guru, whom you love and depend upon, while retaining my consciousness. What is this my consciousness? माई ये ना, या गुरु जो यतीश्वरानंद जी जो लिख रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं। हमारी माई कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहे हैं। वो आर्टिकल में लिखा है, वो गुरु हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है, एक शिष्या को पत्र लिखा है कि तुम अपनी सब चीजों को मर्ज इन मी, मुझ में डाल दो, गुरु में डाल दो। और गुरु कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारा गुरु। तो उस गुरु में, मैं गुरु में तुम डाल दो। यहाँ पे आई यानी मैं, यानी आई नहीं है। राइट महाराज। मुझ में डाल दो, मुझ में यानी मुझ गुरु यतीश्वरानंद में डाल। मतलब कि अपनी पर्सनैलिटी शिष्य समझ में आ गई? हाँ जी महाराज। शिष्य की पर्सनैलिटी गुरु की पर्सनैलिटी में मर्ज कर देनी चाहिए। हाँ, गुरु की पर्सनैलिटी भी नहीं, उसका नो सेंस ऑफ, उसमें फिजिकल पर्सनैलिटी नहीं, वो तो आत्मा है, परमात्मा के स्वरूप है। राइट महाराज, उसकी कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज,
how to lead cosmocentric life instead of egocentric life. दूसरा आर्टिकल, दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। हाँ जी महाराज, how to play the worldly drama while leading God-centric life और cosmocentric life। हाँ, कॉस्मोसेंट्रिक, दोनों में तुमने कहा कॉस्मोसेंट्रिक लाइफ बनाना। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने आप को परमात्मा का ध्यान करना है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, यानी जब हम सामने एक व्यक्ति को देखें तो उसमें सोचें परमात्मा, टेबल में देखें तो परमात्मा, हमारे पीछे भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, सर्वत्र। ये बातें सब शास्त्रों में लिखी हुई है ना, गीता में भी ये बात मिल जाएगी, सर्वत्र है। इसको जीवन में उतारना है कि आई एम कॉस्मोसेंट्रिक। मैं जो है, मेरी आत्मा केवल शरीर में सीमित नहीं है, मेरी आत्मा पदात्मा सर्वभूत आत्मा, मेरी आत्मा संसार की समस्त प्राणियों की आत्मा है। तो ये एक कंसेप्ट, हाई कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बार बार ये बात है। दैट इज द, ठीक है, राइट महाराज, बस प्रणाम महाराज। अच्छा, 5 हो गए। छठा सपना मुखर्जी। Pranam Maharaj. हाँ बोलो। Maharaj, here it's written that if you love somebody and feel greatly attached to him or her, love the divine in that person and be thereby directly drawn towards the divine. So, what are the basic requirements a person needs to do his sadhana in this path? I mean, can There is anybody? no need. Okay. Can anybody do this? ठाकुर के, हाँ, anybody can do it. ठाकुर के पास में एक महिला आई थी ना, जी। वो बोलती थी कि मैं ध्यान जब करती हूँ तो मुझे मेरा भांजा है कि भतीजा कोई है, छोटा बच्चा, उसको मैंने पाल रखा है, वो विधवा थी, हाँ, उसका ध्यान आ जाता है। हाँ, तो ठाकुर ने कहा कि उसी के अंदर भगवान को देखो, उसको जब खिलाओ पिलाओ तो बोलो, समझो कि ये भगवान है, तुम्हारे इष्ट देवता है, कृष्ण को समझो। और उसको देखा, बहुत सारी प्रगति हुई। तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं, केवल हम प्रेम करते हैं। अच्छा, एनी फैमिली मेंबर, कंडीशन, एनी फैमिली मेंबर। अरे हमारे यहाँ तो वो वैदिक चैंटिंग में है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। तो सबको तो हम बार बार कहते हैं। रोगी नारायण कर दिया, जी। तो रोगी है तो उसको नारायण कर दिया। तो जो भी देखेंगे उसको भगवान करके उसकी सेवा करो, ठीक है। So this is a very simple, straightforward idea. Okay. So only thing is practice करना। अच्छा, ठीक है महाराज, प्रणाम महाराज। ठीक है, और कोई? नहीं, ये जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ नमस्ते, आप प्रश्न कीजिए आपका। ये अंडर थ्योरी ऑफ कर्मा इट इज रिटन, कर्मा प्रोड्यूसेस नॉट ओनली व्हाट वी सी, it also produces unseen results, and karma is never identical with fate. So my question is, if karma is not identical with fate, then what is prarabdha? When we say प्रारब्ध, देखिए ऐसा है, फेट की बात, कर्मा और फेट को हम अलग मानते हैं। हाँ। तो कर्म जो है, तो प्रारब्ध कर्म है, उसको हम अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। पुरुषार्थ के द्वारा कर्म को बदला जा सकता है, लेकिन जैसा फेट मानते हैं, फेट को नहीं बदला जा सकता। तो फेट को हम नहीं मानते, हम मानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ के कारण हमें ये पर्टिकुलर जन्म मिला है, इतने वर्ष जीवित रहेंगे, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा संघर्ष करके हम उसको बदलेंगे। फेट को हमारी 50 बरस की उम्र में मरने की बात थी, हम उसको 70 बरस कर सकते हैं हमारे पुरुषार्थ के द्वारा। जी। हमारा मन डल रहने वाला था, हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा ब्रिलियंट बन गए हैं, हम डिग्री प्राप्त कर लिया है। ये हमने अपने फेट को परिवर्तन किया, पुरुषार्थ को के द्वारा किया कर दिया। तो फेट को हम विश्वास नहीं करते, प्रारब्ध में विश्वास करते हैं, लेकिन प्रारब्ध जो है वो कर्म है, वो कर्म परिवर्तित किया जा सकता है पुरुषार्थ के द्वारा। ठीक है। So prarabdha of fate, that means so
एक ही चीज हो गई। हाँ That means prarabdha can also be changed by our karma. यस यस, प्रारब्ध तो कर्म के बदल से बदल ही जा सकता है। जी। बाकी नहीं तो फिर पुरुषार्थ का कोई प्रश्न नहीं उठता है, जब सब अगर भगवान के ऊपर निर्भर करता है। जी ठीक है स्वामी, शुक्र। अच्छा, इतु घोष। प्रणाम महाराज। पहला क्वेश्चन तो हो गया तुम्हारा। जी, एक प्रारब्ध कर्म वगैरह तो हो गया ना, फेट और जी। तो जी महाराज, ये निकाल रहे हैं प्रश्न। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है नहीं, यस, कर्मा इज नेवर। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वन इज स्ट्रगलिंग टू मच it may bring मतलब first it may bring caution to the aspirant and cause him to leave the spiritual path. इसका आंसर। अरे कोई इतना संघर्ष नहीं करता, फालतू बात नहीं करो। जिसको छोड़ना है ना वो पहले ही छोड़ देते हैं जी। यहाँ से ठाकुर तो बोलते हैं, उस सुबह रात को उठा के 12 बजे उठा के बोलते थे, बढ़ो बैठो ध्यान के लिए, बैठो ध्यान के लिए बैठो। इतना तो ठाकुर तो खूब मेहनत करवाते थे, कोई मरा तो नहीं जी। कोई नहीं मरता है जी। कुछ नहीं होता, सब चलता रहता है, आराम से चलता है, कुछ नहीं होता है। करके देखो ना जी। फालतू की बातें, एक्सक्यूज चाहिए कि इतना ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमारा पाथ भ्रष्ट हो जाएगा और कुछ बीमार हो जाएंगे, ये फालतू की बातें हैं। बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है, इट मे कॉज द एस्पिरेंट टू अननोइंगली एंड अप इन ए रॉन्ग पाथ ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी ड्यू टू टायर्डनेस। Because there is not because of tiredness, because no guidance. He does not go to guru, अपने मर्जी से कर रहे हैं। गुरु से मार्ग मिल जावे तब डेफिनेट हो जावे तो क्यों नहीं करेगा, लगाए रखेगा। और जो ठीक संघर्ष करता है तो मार्ग उसको बिल्कुल क्लियर मिल जाता है, कभी दिक्कत नहीं होती। कोई टायर्डनेस से कोई आत्मा बदलता नहीं है, ये कैसा प्रश्न है। कोई आध्यात्मिक जीवन में हम तो जानते नहीं टायर्डनेस जैसी, हम तो खूब तपस्या किए, भिक्षा मांगते थे, रात भर जगते थे, वो भी किए जाते थे, कुछ नहीं होता। मतलब ड्यू टू एग्जॉशन एंड फेलियर, कुछ नहीं, फालतू करके देखो। अच्छा, किया करे कि किया तो नहीं है, बहाने करने के पहले ही बहाने बना रहे हो। They are mere excuses before even doing anything. जी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ टू सरेंडर टू गॉड। देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सरेंडर, मेरा एक आर्टिकल है आनंद की खोज के अंदर, ईश्वर शरणागति जी। तो एक तो है कि सुबह शाम, सुबह भगवान को याद करो, रात को सोने के पहले यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् शंभो तवाराधनम, प्रभु सारे दिन मैंने जो किया वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। ठीक है जी। दूसरा, छोटा काम करना है, खाना बनाना है तो खाना बनाने के पहले उनको याद करो, खाना बनाने के बाद मन ही मन कहो, प्रभु ये जो मैंने किया ये आपको समर्पित। ठीक है जी। अच्छा, कपड़े धो तो कपड़े धोने के पहले याद करो और कपड़े धोने के बाद में, प्रभु ये कपड़ा धोया है तुम्हें समर्पित। ठीक है जी। अब अगर ज्यादा जाओगे तो एक एक कपड़ा धो के और उसको समर्पित करो। अच्छा। एक एक रोटी बनाते जाओ और उसको समर्पित करो। ऐसा भी कर सकते हो, क्या नुकसान है। जी। यानी सब समय समर्पण किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। समझ गए कि नहीं। जी समझे, और अच्छी तरह समझ।
ये समर्पण का भाव सारे जीवन में रखा जा सकता है। अच्छा, ओके, हाँ जी, बस इतना ही प्रश्न था। रीता विश्वाल। Yes, Swamiji. The first question is, what is inner adjustment? Is it the same as acceptance? See, you have not read that article nicely. Yatishwaranand himself has given lot of methods by which you can adjust. Yes, The adjustment, that I have. two, three paragraphs are there. Yes, Swamiji. And then it is there. He says, get rooted in Ma and Thakur and Ma. Has it not told this? Yes, yes, get rooted in Thakur. So first is get rooted in Thakur and Ma. That is the way to get inner adjustment. Yes. Second, it is not acceptance. Adjustment is suppose. Yes, You are told to go do cooking. You don't know cooking. So will you accept it? You will learn cooking, isn't it? You have to take classes. You have to take classes. You don't know. You learn to take classes, isn't it? So there are so many ways in which you have to learn. Learn which you need. Suppose you are put in a place of Bengali people. So you have to learn Bengali. Yes, it is not acceptance. You are learning Bengali, administration, food. Suppose there is chili in the food. Am I going to accept it? I cannot take it. What I will do? I will wash the food curry and remove the chili, isn't it? So there are a large number of ways in which you do adjustment. It is not merely acceptance of a situation. You have to change yourself. So many ways in which adjustment has to be done. Okay? Yes, Swamiji. Yes. Brahma Buddhi and Atma. Yes, Swamiji. Brahma Buddhi and Atma Buddhi. ऐसा है कि आर्टिकल में ओके ब्रह्म बुद्धि और आत्म बुद्धि यतीश्वरानंद जी ने एक लाइन में दोनों को एक साथ लिखा. Both he has written in one sentence, isn't it? Yes. Develop one Brahma Buddhi, develop Atma Buddhi, develop Brahma Buddhi. That means in both Atma Buddhi and Brahma Buddhi are same. But yes, so if in that case both are same. Suppose I consider myself as Atma and Jagat as a part of Brahma. So the Atma Buddhi is in myself and Brahma Buddhi is everywhere. It is an extension of Atma Buddhi is Brahma Buddhi. So अभी जो डिस्कस हुआ जिसको भी देखें जो भी कर्म करें वो भगवान की आराधना होवे. जिसको भी देखें वो सब भगवान को देखें. जिससे बात करें वो समझे कि भगवान है. इस प्रकार का करना, that becomes a ब्रह्म बुद्धि. ओके? Yes, Swamiji. ठीक है? Yes, Swamiji. निवेदिता. ओके, निवेदिता. प्रणाम महाराज. पहला प्रश्न है, when we merge the personality of Guru in infinite, thinking his conscious part and not the personality, we think Guru as the wave of Sachidananda ocean. Where will be the Ishta and devotee's position in that ocean? बड़ा मजेदार प्रश्न है. संजय उनको लगाओ तो जरा. म्यूट कर दे so that your voice can be. हम सबने म्यूट करता है. मेरे से ऑटोमेटिकली संजय म्यूट. जी महाराज. नहीं वो निवेदिता लगी नहीं. निवेदिता जी ने सवाल पूछा. हाँ निवेदिता सुनो. जी. तो ये तो सच्चिदानंद तो ओशन हुआ. ठीक है. हाँ
तो बहुत बड़ी एक वेव हो गई, वो हो गया इष्ट। हाँ और उसके ऊपर एक छोटी वेव हो गई, वो हो गए अपने गुरु। हाँ और उसके ऊपर हम जो हो गए वो छोटी सी वेव हो गई, एकदम छोटी। अच्छा हाँ यही पूछना था। अब तुम चाहते हो इस तरह का है, तो वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द सच्चिदानंद। वी आर अटैच्ड टू द गुरु एंड वी आर अटैच्ड टू द इष्ट, बट ऑल ऑफ अस आर ए पार्ट ऑफ सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हाँ ओके जी महाराज। चलो सेकंड क्वेश्चन। अच्छा दूसरा प्रश्न है, इफ गुरु सीज गॉड इन डिसाइपल, देन हाउ कैन ही गाइड एंड हेल्प द डिसाइपल एज गॉड इज ओमनीपोटेंट? हाउ कैन यू टीच है? हाँ अच्छा, टीच यस यू सी स्वामी ब्रह्मानंद जी को ये प्रॉब्लम है। इटर्नल कंपेनियन यदि पढ़ोगे तो उसमें ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मैं कभी कभी तुम लोगों को सबको भगवान देखता हूँ, और तब लगता है कि मैं कैसे इनको उपदेश दूं। I cannot give उपदेश because they are all gods. So एक एटीट्यूड तो ये है, लेकिन दूसरा एटीट्यूड ये है कि जब हम भगवान देखेंगे तो फिर उसके दो बुराइयां हैं, कमजोरी है, उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अगर तुम अपने बच्चे को भगवान देखोगे तो उनको लगेगा कि अरे इसके अंदर तो दिव्यता है, डिविनिटी है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, वो उसके अंदर दोष है, उसमें प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करने का प्रयत्न करोगे कि जिसके कारण उसमें जो डिविनिटी है वो मैनिफेस्ट हो। समझे ना? तुम्हारा बच्चे को जस्ट अंडरस्टैंड, सपोज यू हैव अ चाइल्ड, और बच्चे को देखोगे तो ये बच्चा जो है वो भगवान है, भगवान है। अरे भगवान होते हुए भी देखो ये कितना गंदा काम कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए, मैं इसको ठीक करूंगी। समझे ना? सो ये दिस बिकम्स ए पूजा ऑफ द गॉड। भगवान जो मानव जिसको हम देख रहे हैं भगवान, उसकी पूजा हो जाएगी। रोगी नारायण, अरे तो नारायण है, ये अपने आप को भूल गया है, तो इसको हम ठीक करके उसको बताएंगे कि तुम नारायण हो, तुम ऐसा नहीं, ये शोभा नहीं देता तुमको। दिस इज व्हाट वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। बहुत सुंदर। अच्छा उसके बाद है व्हाट इज आत्मबुद्धि एंड हाउ टू डेवलप इट एंड हाउ टू रिमेन इन दैट फॉरएवर। ये तो हो गया है, ये हो गया। तीश्वरानंद जी बोलते हैं उसमें आर्टिकल में ही है, ये वो बोलते हैं कि निरंतर भगवान का जप करो और निरंतर भगवान का स्मरण मनन करो, इससे वो परमानेंट होगी। ठीक है बस। और मेरा आखिरी अच्छा मतलब उसके साथ में ये है, मैंने कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। अच्छा आखिरी खाली आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग नहीं, वो एक बता देता हूँ, केवल एक ही बताता हूँ। बोलिए। ठाकुर ने क्लियरली कहा है ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है। ओके, और बाकी जो चीजें हैं वो डिटेल है, वो अलग है, इससे आर्टिकल से संबंध नहीं। ओके जी, प्रणाम महाराज। अच्छा अग्रवाल, एक सवाल करूं इसका एक्सटेंशन में जो पूछ रही थी। करो। तो आपने कहा बच्चे को में जो दोष है उसको हम दूर करेंगे क्योंकि उसमें मैं दिव्यता देखता हूँ। आपने कहा एक रोगी में है उसको करता हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट ए क्रिमिनल? वहां पे क्या अगर हम किसी क्रिमिनल के सामने आते हैं, क्या हमें कुछ करना चाहिए या हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए? अरे क्रिमिनल में भगवान देखा था पवारी बाबा ने। हाँ जी, और वो संत बन गया, मालूम है ना? जी जी। तो अगर हम किसी दुष्ट में देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप में भगवान देखते नहीं हैं। प्रॉब्लम है हम अपने आप में भगवान देखते नहीं हैं, इसलिए हम करेंगे भी तो वो नहीं मानेगा, नहीं होगा। हाँ, मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है। इसका मतलब ये कि कोई क्रिमिनल आया, चोर आया, तो उसको कहना हाँ प्रभु आइए आइए, ये भी ले जाइए, तो कहेगा ठीक है, मैं अगली बार जो डिवाइन फैमिली को आऊंगा, लेके आऊंगा और तुम्हारा सारा घर का सामान ले जाऊंगा। वो परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि हम ही भगवान नहीं देखते अपने आप में, तो कैसे हो? ठीक है महाराज, हमारे थैंक यू महाराज। आशीष अग्रवाल, कुछ है प्रश्न? हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो, तुम्हारा क्या प्रश्न?
मैंने आपका पातंजलि योग दर्शन पे जो आपके प्रवचन है वो सुने हैं, तो उसमें आपने पातंजलि योग दर्शन में शुरुआत में जो एकदम बेसिक प्राणायाम होता है उसमें आपने कहा कि श्वास मुंह से खींचना है, फिर उसको सॉलो करना है और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है। तो वो मैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था तो मैं वो देख नहीं पाया, तो एक आपसे निवेदन था यदि आप वो हमें बता पाए तो। नहीं नहीं, ऐसा है कि वो एक प्रकार का है कि सांस अंदर लो, उसके बाद में एक स्वॉलो करो और सांस बाहर छोड़ दो। हाँ, बस ये एक प्रकार का प्राणायाम है। नहीं लेकिन सांस अंदर लिया, अंदर ही रहेगा और स्वॉलो कर लोगे। अच्छा। और उसके बाद सांस छोड़ दोगे। तो श्वासों को नाकों से रहते हुए भी हमने स्वॉलो कर लिया है? श्वासों को नाक से ही अंदर जैसा हम खाना, नाक खुली रहेगी और सिर्फ गले में एक एक्शन होगा स्वॉलो करने का। अच्छा, देखो मैं अभी देख रहा हूँ, ये तुम मुझे देख रहे हो तो मैं बताता हूँ तुमको। हाँ, मैंने मुंह से सांस ले रहा हूँ, और पूरा सांस अंदर लेके मैंने घुटक लिया और नाक से सांस छोड़ दिया। अब मैंने मुंह जब बंद किया तब उसको घुटक लिया और उसके बाद सांस छोड़ दिया। ठीक है महाराज, ठीक है। अच्छा, शिवानी का क्या हुआ? एक प्रश्न और बचा था। शिवानी मैम ट्राई करिए एक बार। हाँ, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट। जी महाराज। Maharaj, my question is, world talks at all, as we know that all these are useless things, then what to do? हेलो जी महाराज। हाँ, मुझे क्वेश्चन मिल गया। हाँ जी महाराज। है कि हम संसारी बातें नहीं। संजय, आवाज डिस्टरबेंस बंद करो तो मैं जवाब दे देता। इनका क्वेश्चन है कि हम संसारी बातें नहीं करना चाहते हैं, हम भगवान की चिंतन करना चाहते हैं, संसारी बातें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज संसार में रहते हैं तब क्या करना? जी यही है ना प्रश्न? जी, वैसे पर्सनली मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता वर्ल्डली टॉक्स में, तो व्हाट टू डू? मतलब वो सब ऑल दोस वर्ल्डली टॉक्स। आवाज बंद करो, मैं तो तैयार हूँ बेटा जवाब देने के लिए। हाँ, शिवानी अनम्यूट कर लीजिए आप, तो फिर वो आवाज चला जाएगा। अनम्यूट लीजिए, आवाज चला जाएगा। शिवानी जी म्यूट कर लीजिए, फिर आवाज चलेगा। जी, अब आप जवाब दे दें महाराज। हाँ, ये बोल रहा था कि ये देखो, हम जब डॉक्टर थे तब वार्ड में जाते थे तो हमारे मेडिकल बैग के अंदर एक ज्ञान योग की किताब या राजयोग की किताब स्वामी विवेकानंद की रखते थे, और जब फ्री टाइम होता था तो उसको लेके और बैठ के पढ़ने लग जाते थे, बात नहीं करते थे। और जो दूसरे हमारे डॉक्टर्स थे वो हमको स्वामी जी करके चिढ़ाते थे, तो चिढ़ाने दीजिए, लेकिन संसारी विचार जहाँ पे हो रहे हैं, बात उठ रही है, वहां से हम हट जाते थे। हम अपने एक जगह पे बैठ के, कॉमन रूम था उसमें बैठ के किताब पढ़ा करते थे। तो इट इज पॉसिबल, संसारी लोगों के बीच में रहते भी एक किताब रख लो, उसको पढ़ो और संसारी बातें मत करो। इज दैट ओके? ठीक है संजय?
जी महाराज। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, ओके, खत्म करें? जी महाराज। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री प्रणाम महाराज।